जाने कितने वर्षों से वही गाना चल रहा है, वही केक आ रहा है, वही मोमबत्ती लगती है, उसको बुझाना पड़ता है, छुरी से काटना पड़ता है। आजकल तो एक ऐसी प्रथा शुरू हो गई कि काटने के बाद वो पोत देते हैं चेहरे पे। Many happy returns of the day. Thank you. Amit sir, you're not just an Indian superstar actor today, but a global actor. But you're second to none even in Hollywood, but we don't see you do much work there. We know that you don't consider Indian cinema inferior in any sense to Hollywood, but is there any plan to do more work there in the West? See, first of all, I don't agree with you that, that I'm incomparable and that I have some very big titles. I've never believed in that. And every day is a learning graph for me. Every day I see that there are many shortcomings in me. And I learn from working with the newer generation, with the younger generation, who are very, very proficient. To compare ourselves with other industries is a very natural and a normal phenomena. We appreciate what the West does. We appreciate the way they make movies. But I think that we need to be proud about our own industry, about our own talent. I think that the degree of talent that exists here in our country amongst our artists, both in technology and in the creative field, is immensely huge. Yes, there was a time for many, many years when the Western world did not look upon us too kindly. They did not like the way our films were made. They did not like this dance and singing routine. But they are not aware of what our circumstances are and what circumstances our films are made. Our films are made for entertainment for the common man. The common man is not very affluent, is not very rich. After working for the whole day, giving so much labor, he wants to come and have a release somewhere. And that is why when he comes into an air-conditioned hall, which is again a unique thing for him, to sit in there for 3 hours and watch some entertainment, he wants to see something light and happy and not want to see a reproduction of his own life. So perhaps the West could not understand that. They are economically more superior to us, but I feel that they must understand our circumstances. And I now see that they have understood what our circumstances are, and they are now appreciating our kind of cinema as well. They see the values that we bring in our stories. They see the great amount of technology and the sense of how stories are made and narrated, our performances. I've had many wishes from all over the world, from students who are studying acting in very prominent schools in Los Angeles, in New York, and they see our films and they are amazed and they say, we appreciate your work and we are all fans of yours. So I think these are all good tidings. In the end, you know that cinema is universal and it doesn't require any language or location. We hope that cinema will progress here, that we will be able to appreciate their work and they will appreciate ours equally. Sir, Mr. Bachchan here. So one more thing. Sir, you spoke about working with the younger generation, which is very talented. If any generation after yours that has made us proud, it's the Khan Troika. Amir, Salman and Shah Rukh. Yeah. They are also reaching a personal milestone of 50 years in their life. So anything that you would like to say for them? Yeah, I hope that they continue. I hope that they continue being who they are for 100 years. They have been a great source of inspiration to so many people. They've brought happiness and joy in the lives of so many well-wishers and fans. I can always wish them the very best. Mr. Bachchan here. Firstly, a very happy birthday. Thank you. The kind of roles that you have been doing is obviously appreciated by everybody. But with you inching to the 73rd birthday, are there any plans of like slowing down in your career and probably being a lot more choosy when it comes to the roles that you pick? Sorry, I can't understand. Of slowing down? Slowing down with and also any kind of roles that you've been wanting to do, and are you planning to slow down in your career now with the kind of roles that you've been getting also? Ma'am, when you ask me to slow down, you'll have to tell me what my speed is now. Because the way you've been... तभी बता पाऊंगा कि मैं धीमे चल रहा हूँ, तेज चल रहा हूँ. तो जैसे चल रहा हूँ उसको चलने दीजिए, मैडम गाड़ी चल रही है उसको चलने दीजिए. And I don't think about what's going to happen in the future. I'm just very fortunate that I still get some work, and I hope that I can continue working as long as my body is with me. Sir, firstly, a very happy birthday to Thank you. you. And is there, still a child somewhere within Amitabh Bachchan's heart? And, when it's your birthday, do you still look forward to cutting a cake or two? And probably the way you said, when you were a kid, you were looking forward to expect some Yeah, I think with age we all mature and we realize that all these formal moments that normally are associated with birthdays,
you tend to overlook them now. It's just another day. I'm just, as I said, fortunate to be with friends and family and the media. For me, it's just another day. I hope, previously I used to actually make sure that I actually work on my birthday, but somehow that's now been negated by the family. They want to spend more time with me because in any case, the whole day I'm out of the house very early, come back very late. So they never get an opportunity to be with me. So I've stopped that practice. Now I spend time with the family. That's it. It's just another day. I don't look upon it as some kind of a formal occasion. बच्चन सर, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। हम चाहे बाबूजी की कोई कविता सुना इधर सर। हाँ जी जी। बाबूजी की कोई कविता हमें सुनाना चाहेंगे इस मौके पर आप? सर बहुत सारी कविताएं हैं अभी। कोई कविता सर बाबूजी की सुन चुके हैं आप पहले कई बार उसको, कि जीवन की आपाधापी में कब वक्त मिला, कुछ देर कहीं पर बैठ कभी ये सोच सकूं कि जो किया कहा माना उसमें क्या बुरा भला। जिस दिन मेरी चेतना जगी मैंने देखा मैं खड़ा हुआ हूँ इस दुनिया के मेले में, हर एक यहाँ पर एक भुलावे में भूला, हर एक लगा है अपनी अपनी दे ले में। कुछ देर रहा हक्का बक्का भौचक्का सा, आ गया कहाँ क्या करूँ यहाँ जाऊँ किस जां, फिर एक तरफ से आया ही तो धक्का सा, मैंने भी बहना शुरू किया ऐसे रेले में। बच्चन साहब, सबसे पहले तो जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। मेरे 2 सवाल होंगे। सर सबसे पहले तो आज का जो मेन्यू होता है खाने का, वो आप डिसाइड करते हैं कि जो आपको पसंद है वही घर में बनाया जाता है? जी, खाने के मामले में मैं बहुत ही नालायक हूँ और बहुत सी चीज़ें और खाने का पदार्थ मैंने छोड़ दिया है, तो घर वालों को चिंता ये रहती है कि अभी क्या बनाएं, क्योंकि सब कुछ तो खाना छोड़ दिया है मैंने। कोई ख़ास वजह से नहीं, इसके पीछे कोई मेडिकल रीज़न नहीं है, ऐसे ही मन में आया कि छोड़ देना चाहिए। त्याग बहुत बड़ी चीज़ होती है हमारे जीवन में, तो नहीं कुछ ऐसा ख़ास नहीं है। और जो कुछ भी बनता है वो जया बनाती हैं, वो वही घर वाले ही बनाते हैं, वो खाते हैं। कल रात को मेरी बेटी आई हुई है यहाँ, तो उन्होंने अपने हाथ से खाना बनाया था, वो बहुत स्वादिष्ट था। जी। अब बच्चन साहब, दूसरा सवाल होगा मेरा। सिंगर्स की बात करते हैं तो सर इन दिनों जिस तरह से गुलाम अली का शो यहाँ कैंसिल किया गया है सर, तो उसे आप किस तरह से देखते हैं कि क्या कहीं ना कहीं पाकिस्तानी कलाकार और हिंदुस्तानी कलाकार के बीच ये पॉलिटिक्स बाधा बन रही है, या इसे वजह क्या मानते हैं सर? इसको एक राजनीतिक एक मुद्दा बन गया है और राजनीति में मैं हूँ नहीं, इसलिए इस पर अपना बयान नहीं दे पाऊँगा। अगर कोई ऐसी बात है जिससे कि सरकार ये एक नियम बना दे कि ऐसा होगा ऐसा नहीं होगा, तो हम नियम का पालन करेंगे। हमारे लिए तो वो कलाकार हैं, बाकी उसके साथ जो राजनीति हो रही है उसमें मैं तो हूँ नहीं। हम सर मनीष है, जन्मदिन की ढेर सारी बाधाएं आपको बताएं। धन्यवाद धन्यवाद। बधाई आपको। जी जी जी। इससे पहले क्या कहा आपने? बधाई है सर। अच्छा, पहले बधाई थी ना। सर मेरा सवाल आपसे कि सर बदलते वक्त के साथ में समय बदला, वक्त बदला, बट ऑब्सेशन एज अ एक्टिंग आपका हमेशा से रहा है, तो इस बारे में आप थोड़ा अगर बताना चाहें। एक्टिंग आपका ऑब्सेशन हमेशा रहा है? ऑब्सेशन नहीं, एक इस तरह से मान लीजिए कि स्टेज पर जाने में अच्छा लगता था, जब बहुत ही बचपन से। जब मैं, जहाँ तक मुझे याद है कि इलाहाबाद में मैं सबसे पहले जो मुझे दाखिला मिला जिस स्कूल में, वो एक महिलाओं का स्कूल था, वो कॉन्वेंट था, सेंट मैरीज़ कॉन्वेंट था इलाहाबाद में। उसमें किंडरगार्टन से लेकर के मुझे याद है हम लोग स्टेज वेज पे काम करते थे। और किंडरगार्टन में जो हमने प्ले किया था, शायद उसमें एक भूमिका जो मुझे मिली थी, वो एक छोटा चिकन का बच्चा होता है, उसकी भूमि था, परवर लगा कर कैसे कूदना था। वो तब से एक लगाव रहा है, और कोई ऐसा वर्ष मुझे याद नहीं जहाँ पर मैंने स्कूल में या स्कूल के प्ले में काम न किया हो। सर अभिषेक आज आपके जन्मदिन के दिन यहाँ नहीं है, वो लंदन में है, और आपने अभी कहा कि आपकी बेटी आई हुई है, तो आप उन्हें कितना मिस करेंगे आपके जन्मदिन के सेलिब्रेशन? ठीक 12 बजे रात को उनका फ़ोन आ गया था, बधाई दे दी उन्होंने, और अभी जाऊँगा तो फिर वो मुझे फ़ोन करेंगे। माध्यम अच्छे हो गए हैं, अब ऐसा नहीं लगता है, स्काइप करते हैं पर या फेस टाइम करते हैं तो स्वयं प्रकट हो जाते हैं वो। सर 11 अक्टूबर को, आज से नहीं, जब से जंजीर और दीवार रिलीज़ हुई है, जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनके नाम माँ बाप उनके अमित या अमिता रख दिए जाते हैं, तो आपके साथ बहुत सारे लोग बर्थडे शेयर करते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे?
ये अन्याय हो रहा है या अच्छा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ जी, बहुत अच्छा है। अच्छा है। जी। बहुत ही साधारण सा नाम है। और मैं जब पैदा हुआ था तो बहुत ही विख्यात कवि सुमित्रानंदन पंत जी उन दिनों हमारे साथ इलाहाबाद में हमारे घर में रह रहे थे। और उसी समय उन्होंने, मैं जब घर आया, लाया गया, ऐसे साधन नहीं थे हमारे पास। और माँ बाबूजी मुझे गुदरी का लाल, मैं अपने आप को कहता हूँ, गुदरी में लपेट के एक टांगे में लाए थे घर। और उन्होंने मुझे देखा तो कहा था कि ये है अमिताभ। और तब से वो नाम पड़ गया अमिताभ। अमिट आभा, ऐसी आभा जो मिटाई नहीं जा सकती। गौतम बुद्ध को भी अमिताभ शीर्षक दिया गया था, तो वहाँ से प्रेरित होकर के उन्होंने ये नाम दिया। बंगाल में अमिताभ नाम जो है वो काफ़ी प्रचलित है बंगाल में। जी। अमित जी, बच्चन सर आपने कहा था कि बर्थडे सेलिब्रेट आप ज़्यादातर के मतलब आप घर पे नहीं होते थे, आप काम कर रहे, शूटिंग कर रहे होते थे। तो ऐसा कोई आपको किस्सा याद है किसी शूटिंग के टाइम, शोले के टाइम या दीवार के टाइम आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया हो पूरी टीम ने मिलकर, ऐसे कोई भी मूवी के टाइम पे आपको कुछ ऐसा याद है सर? जी, जाहिर है कि जब कभी जिस सेट पे होते हैं तो वो लोग आकर के जन्मदिन मनाते हैं। बड़ा अजीब सा लगता है मुझे, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेकिन अब क्या करें। और ये केक की प्रथा जो है, इससे अपने आप, और फिर वो गाना गाएंगे सब लोग हैप्पी बर्थडे। न जाने कितने वर्षों से, सालों से वही गाना चल रहा है, वही केक आ रहा है, वही मोमबत्ती लगती है, उसको बुझाना पड़ता है, छुरी से काटना पड़ता है। और आजकल तो एक ऐसी प्रथा शुरू हो गई कि काटने के बाद वो पोत देते हैं चेहरे पे। अमित जी, न जाने ये कहाँ से आ रहे हैं। जया जी ने आपको आज क्या भेंट वस्तु दी है? हमेशा आप ऐसे स्पेशल मौके पे जया जी ने दिया हुआ कुछ स्पेशल पहनते हैं या लेकर आते हैं, तो कुछ दिया है? जी, जो दिया है वो मेरी जानकारी के लिए है, आपकी जानकारी के लिए नहीं। अमित जी, अभी भी कोई ऐसा एम्बिशन है जिसे आप पाने की इच्छा रखते हैं या करना चाहते हैं उसे? जी, होनी चाहिए। मैं तो प्रतिदिन ऐसा सोचता हूँ कि कुछ ना कुछ नया सीखूं प्रतिदिन। और बहुत सारी बातें हैं जो कि कोई भी इंसान अपने जीवन में करना चाहता है। अब व्यक्तिगत तौर पे बहुत सी ऐसी बातें, और श्रेष्ठ बात आप पूछेंगे तो मैं उसका उत्तर नहीं दे पाऊँगा, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि बाबूजी के साथ और समय अगर मैं बिता सकता तो अच्छा होता। हालांकि जब बाबूजी का देहांत हुआ तो जाहिर है कि बहुत निराशा होती है और काफ़ी दुखद का समय था। तो हमारे जो कुछ घनिष्ठ के मित्र थे, उन्होंने मेरी अवस्था को देखा और उन्होंने कहा कि आप इतने निराश क्यों हैं, आपको अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि आपने अपने जीवन के 60 वर्ष से भी ऊपर अपने पिता के साथ बिताए। उन्होंने कहा मेरे पिता का देहांत तो मैं जब 20 वर्ष का था तभी हो गया था, तो मैं केवल 20 वर्ष उनके साथ बिता सका। तो आपको अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए कि आप 60 वर्षों से ज़्यादा उनके साथ बिता सकते। तो मुझे लगा कि हाँ, अगर ऐसी बात है तो मैं भाग्यशाली समझता हूँ। लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि अगर मैं थोड़ा सा समय और बिता लेता उनके साथ तो उनका जो लेखन है उसको मैं और समझ सकता। आज भी मैं प्रयत्न करता हूँ, प्रतिदिन कुछ उनकी कविताओं को पढ़ता हूँ, उनकी आत्मकथा को पढ़ता हूँ, उनके पत्रों को पढ़ता हूँ, उनमें से कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ढूंढने की चीज़ करता हूँ ताकि उसका एक मायने जो है वो मेरे जीवन को और मधुर बना सके। दूसरा, संगीत के प्रति बहुत लगाव है और संगीत में जो इंस्ट्रूमेंट है उनको सीखने का बहुत चाह रहा है, लेकिन कभी अवसर मिला नहीं। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो लोग संगीतकार होते हैं वो ईश्वर की देन होते हैं, क्योंकि संगीत जो है वो एक आत्मा और परमात्मा का एक तार है जो जोड़ता है दो लोगों को। तो अभी भी प्रयत्न है, अभी सब कुछ है मेरे पास, यहाँ पियानो भी है और सितार भी है, सरोद भी है, डमरू भी है, सब कुछ है, लेकिन बजा नहीं पाता हूँ, सीखूंगा उसको। अमित जी, कई जगह पर ऐसी बातें हो रही थी कि हरिवंश राय बच्चन जी के ऊपर भी बायोपिक फिल्में बननी चाहिए, तो आप ऐसा चाहेंगे कि उनके ऊपर फिल्में बननी चाहिए? अगर कोई अपनी ओर से बना रहा है डॉक्यूमेंट्री, मैं उसको रोकने की हिम्मत नहीं करूँगा। अपनी ओर से मैं कभी ऐसा नहीं करना चाहूँगा। अमित जी, मैं आनंद हूँ लहरे से। जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं सबसे पहले तो सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 4 दशक इंडस्ट्री में आपने गुजारे, कभी सोचा कि थोड़ी डोले शोले बनाए जाए, 6 पैक 8 पैक सब बना के घुमा जाए, कभी ऐसा ख्याल आया? क्योंकि आज फैशन सा हो गया है। क्या कहा इन्होंने? थोड़ी बॉडी बनाई जाए, थोड़ी डोले शोले बनाए जाए। सर, हमारी बॉडी जो है वो अस्पतालों में बनती है आजकल। अब उसकी गुंजाइश रही नहीं कुछ। नहीं, आपके ज़माने में जब धर्म जी हुआ करते थे आपके साथ, तब की बात। नहीं सर, हमको पता ही नहीं था उनके बारे में।
ये तो बाद में आज की जो नौजवान पीढ़ी है इन्होंने बस दिखाया अपना कुर्ता ऊपर करके कि देखिए ये सिक्स पैक होता है, हमको मालूम नहीं था ये सब। अमित फ्रॉम दैनिक जागरण। सर आपने जैसा कहा कि अब हॉलीवुड और वेस्ट भी हमारी फिल्मों को अप्रिशिएट करने लगा है, तो हम इस दौर को सबसे सुनहरा दौर कहें सिनेमा का? हर दौर जो है मैं ऐसा मानता हूँ सुनहरा रहा है, क्योंकि हर दौर में अगर जनता का प्रशंसा उसको मिलता रहा है तो उसने कुछ सही काम किया है। 100 वर्ष से भी ऊपर हो गए हैं फिल्म इंडस्ट्री को, और इतने वर्ष अगर वो जीवित रहा है तो वो आप लोगों की वजह से रहा है, जनता जनार्दन की वजह से रहा है, तो कुछ ना कुछ तो सही हो रहा है। अगर नहीं होता तो इतना उसको प्रोत्साहित नहीं करते आप लोग, लेकिन है, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि हर दशक में, हर वर्ष, हर प्रतिदिन कुछ ना कुछ ऐसा अच्छा हो रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें चलती हैं, कुछ चीज़ें नहीं चलती हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री का एक रवैया है। लेकिन क्योंकि इसको प्यार स्नेह मिलता रहा है इतने सालों तक, तो कुछ ना कुछ तो वो सही कर ही रहा है। हाँ, दोस्ताना है। अब ऐसा है कि सर हर वर्ष कुछ ना कुछ एक आ जाता है नुमाइंदा, इसके 30 साल हो गए, इसके 35 हो गए, इसके 40 साल हो गए, पढ़ के बड़ा अजीब लगता है। उम्र का तगाज़ा जो है वो बताते हैं हमको। लेकिन बधाई देता हूँ, और धर्मा प्रोडक्शंस में यश जौहर जी को, वो निर्माता थे दोस्ताना के, और हमारे सह कलाकार थे उसमें, जीनत अमान थी, शत्रुघ्न सिन्हा थे, सलीम जावेद साहब ने उसकी कहानी लिखी थी, अच्छी फिल्म थी, अच्छा लगा हमको उसके काम में। बधाई देते हैं धर्मा प्रोडक्शंस को। Sir, can we ever see you, Jaya ji, Aishwarya and Abhishek together in a movie? या आई होप सो, लेकिन एक सही कहानी आनी चाहिए जिसमें हम लोगों को अवसर मिले काम करने का। ओके, थैंक यू सर।